Huh. Connected. You listening me? Good afternoon. Okay. Everybody, you're listening me and you're seeing the slides? Good. So we're starting again. We'll just go fast forward, revising all the slides. The functional classification, anatomical classification, types of neurons that has also been taught to you. Then this also has been taught to you, types of Golgi, 1 and 2 and 3 types. Then 3 is actually without axons. And classification of neurons is also been taught to you. Functional classification according to the shapes, the different types of cells. Then according to the size, bigger than RBC, smaller than RBC, somatic and autonomic nervous system, that also been done. Synapse, we discussed in detail about the synapse, types of synapse, then different types of neuroglial cells, connective tissue of the nervous system. And then this was about the gliosis, that's inflammation that happens in the CNS and that is healed by gliosis. Okay, then this was the differentiation or comparison between different types of neuroglial cells. Now this also is an important slide. Are you all listening? With Ahmed Nawaz. Okay, so now gray matter has, CNS has two different portion. When you see with the naked eye, you find that one is the gray matter and the other is white matter. Gray matter you find in the CNS when you talk about brain and cerebellum. They have the gray matter on outside the periphery and the white matter is inside. But in the brain stem, which continues as spinal cord, so in the brain stem and in spinal cord, the gray matter is centralized, while the white matter is on the outside, right? This, them. And gray matter, it's formed by the collection of cytons. White matter is formed by the collection of dendrites and axons. Now the gray matter you can see is because of the cell body of neurons, as well as I told you in the gray matter there is neuroglia also, including protoplasmic astrocytes, as well as microglia, which I told you is present in both the gray and white matter. And abundance of blood vessels also you will find in the gray matter. If you compare with the white matter, here you find only the axons and dendrites, and the neuroglia in this, you find the cells of neuroglia. You have fibrous astrocytes, oligodendrocytes, and microglia. These are the connective tissue cells of the white matter. And blood vessels comparatively are fewer than the gray matter. You can add one difference, that the blood vessels here in the gray matter, they do anastomose, but in the white matter the blood vessels are end arteries. ठीक है, तो इसकी वजह से if there is a hemorrhage on the of the blood vessels supplying the white matter, what happens is there is there is irreversible changes. Paralysis actually happens because of uh, thrombosis or ischemia of the blood vessels or the central branches of the brain. ठीक? Then outer aspect of the CNS, cerebral cortex and cerebellar cortex, is made up of gray matter. And inner H-shaped aspect of the spinal cord, it's a butterfly shaped or H-shaped gray matter present in the spinal cord. And within the white matter of CNS, अब हम बात कर रहे हैं brain और cerebellum की, and even in the brain stem,
the collection of cytons within the CNS, within the white matter, is called nuclei. So apart from the cortical gray matter, you also find nuclei embedded within the white matter. Then in the peripheral nervous system, we have ganglia. The cytons form the ganglia in the peripheral nervous system. Then white matter may you have inner aspect of CNS, including cerebrum and cerebellum. You have white matter on inside. Then outer aspect of the spinal cord, that is funiculus, fasciculus. Those are the white component of the spinal cord. Then within the CNS, this white matter forms tracts, lemniscus, fasciculus, right? Bundles of axons. They call tracts or lemniscus or fasciculus. Okay? These are the different terms used for the bundle of axons, which have which run different with different functions. So those are tracts, lemniscus, and fasciculus. And instead, in collection of cytons in the white matter is nuclei. And PNS में क्या होता है? Cranial nerves, spinal nerves, and autonomic nerves. They are also part of white matter. Then reflex arc. This is a physiological unit. The anatomical unit of nervous system is a neuron. Take a nerve cell. But physiological unit means a single neuron doesn't fulfills the purpose. So to complete an action, you need at least two neurons. Okay? So that together forms a functional component. So that is called a reflex arc. The reflex arc is a physiological unit of nervous system. Clear? Now the two neurons, one of them will be an afferent and the other will be an efferent. So here they have shown is a jerk, a knee jerk. This, which muscle is the extensor of the knee joint? Knee jerk reflex is a single synaptic reflex. Yes, that has been shown here in the diagram. Which muscle is the chief extensor of the knee joint? Yes, quadratus femoris. Quadratus नहीं, quadriceps femoris. ठीक है? QS तुमने पूरा नहीं लिखा है आकाश. Quadriceps femoris. ठीक है? So quadriceps femoris say, within the muscle you have muscle spindle and Golgi tendon organ. Those are the proprioceptive receptors. ठीक है? And like they are sensitive to stretch. So those sensory receptors which are found, basically Golgi tendon organ is actually found at the musculotendinous junction, and within the belly of the muscle you find is a spindle, muscle spindle. So these are the sensory organs, and from there the sensory impulse is carried through the first order neurons to a sensory nerve, of which the cyton lies outside in the dorsal root ganglion, and instead of relaying there in the dorsal horn of the spinal cord, they synapse directly into the anterior horn of the spinal cord with the descending, or you can say effector neuron. Now this effector neuron comes out through the ventral root of the spinal nerve, and through the same nerve it reaches to the motor end plates, and the motor end plates are the effector sites from where this impulse to contract the muscle is initiated, right? So this, with a tap here, with a single tap on the ligamentum patelli, there is a stretch reflex. Because of which there is an impulse created in the Golgi tendon organ and muscle spindle, and this impulse reaches the spinal cord, and at the same spinal cord level, the effector neurons bring about the effect or the action. So what you have seen that this is simply an arc, a monosynaptic arc. Here
this information of knee jerk, tapping with the hammer at the ligamentum patelli, this information has not reached the brain, because as I said, the information to reach the brain, the first order neurons relay here in the dorsal root, or even if they do not relay, they are continuous to the medulla, then from medulla to thalamus, thalamus to the sensory cortex. So they are not ascending neurons, they are simply monosynaptic arc. तो कहने का मतलब ये है कि जो हम ये पढ़ते हैं कि skeletal muscles are voluntary muscles, smooth muscles and cardiac muscles are involuntary, right? ये हम पढ़ते आए हैं अब तक, लेकिन अभी यहाँ पे देखा आपने कि जो skeletal muscle है, this also is behaving involuntarily, like you didn't thought of contracting the quadriceps or jerking the knee joint, but it actually happens. The reason is whatever voluntary activities ऐच्छिक मतलब अपनी मर्जी से करने वाले एक्शन वो ही होते हैं जो हायर सेंटर से कंट्रोल होते हैं. So in a reflex arc, actually skeletal muscles also behave or contract subconsciously, or subconscious means the impulses which do not reach the higher centers are called subconscious impulses. ठीक है, तो without your alertness ये happen होता है. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे voluntary ये जो है impulses जा रहे हैं. Can you tell me what is the nerve supply of quadriceps femoris? So आकाश, हाँ, स्केलेटल मसल कैन एक्ट एज इनवॉलंटरी. यही तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे साइनेप्स के लेवल पे इनवॉलंटरी ही बिहेवियर है. यस, सो इट इज femoral nerve. Okay, so femoral nerve is the nerve supply for quadriceps. Now femoral nerve, I taught you that in femoral nerve, when it enters into the thigh, it passes below the midpoint of inguinal ligament. Okay, just lateral to the femoral sheath, just lateral to the femoral artery. Then after 5 centimeter, it divides into anterior and posterior divisions. The only muscular, now this is a revision point, the only muscular branch given out from the anterior division of femoral nerve is nerve 2. Only muscular branch given out from the anterior division of femoral nerve is nerve 2 sartorius. अब्दुल समद, क्या बात है, सही बात है, sartorius. So sartorius is the only muscle that is supplied by the anterior division of femoral nerve. Rest all the muscles of the front of thigh are innervated by the posterior division of femoral nerve. ठीक, अब हमें ये बताओ, ये रिवीजन चल रहा है. There is nerve 2 vastus medialis, nerve 2 vastus lateralis, nerve 2 vastus intermedius, nerve 2 rectus femoris, nerve 2 articularis genu. Right? So which nerve supplies out of these muscular branches, which branch supplies the hip joint? Yes, Osama, it is nerve 2 rectus femoris which supplies the hip joint as well. Now tell me, which muscular branch supplies the knee joint? Femoral nerve supplies knee joint also through, yes, nerve 2 all the vastus. Akash, sahi hai. So all the branches, nerve 2 vastus medialis, intermedius and vastus lateralis, all these nerves descend down to supply the knee joint through femoral nerve. Otherwise you have obturator as well, लेकिन हम फिलहाल femoral nerve की बात कर रहे हैं. तो all the 3 vasti की जो nerves हैं, they reach down to supply the knee joint. अब हमारी बात आई है sensory supply की. सेंसरी सप्लाई की बात करो तो सेंसरी सप्लाई
नी जॉइंट की सेंसरी सप्लाई, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग इज प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस फ्रॉम द नी जॉइंट। अभी ये जो नी जर्क दिया है, इसके जो सेंसरी स्टिमुलस मिला, ये किस नर्व के थ्रू एसेंड करेगा? Because all the branches I told you, they were all motor branches. They were all motor branches supplying the muscles for contraction of the muscle. The one branch which carries proprioceptive sensations from the knee joint is nerve 2 vastus medialis. ठीक है, अभिषेक मोहम्मद असद अली। सो रिमेंबर, ये बात हमने बताई थी कि आउट ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस, nerve 2 vastus medialis is the thickest nerve and it carries proprioceptive sensations from the knee joint. याद रखना ये बात, nerve 2 vastus medialis के थ्रू sensations ऊपर जाते हैं। Anyways, and what is the root number of femoral nerve? Root number L234, correct. Dorsal or ventral division? Dorsal or ventral? Dorsal, Osama, Kirti, correct. Ventral division L2, L3, L4 से कौन सी होती है nerve? Which nerve arises from the ventral division of L2, L3, L4? Obturator nerve, correct. Okay, Akash, Sanjana, असद, ओके। नाउ ये चीजें तुमको इसलिए बता दी, थोड़ा सा रिवीजन हो गया है फीमोरल नर्व का। तो ये मोनोसाइनेप्टिक आर्क से समझ में आ गई बात। हायर सेंटर से कोई मतलब है, इट्स अ रिफ्लेक्स और अ सबकॉन्शियस इनवॉलेंटरी एक्टिविटी ऑल्दो एक्टिंग अपॉन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये क्यों बने हैं बॉडी में, कभी सोचा है? ये सारे रिफ्लेक्सेस बॉडी को अलर्ट रखने के लिए हैं, अलर्ट एज वेल एज बैलेंसिंग, यानी कि एक तरह का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, राइट? अगर तुम एक एक पतली सी दीवार पे चल रहे हो, राइट, एंड यू सडनली स्टार्ट लूजिंग बैलेंस, यू विल फाइंड योर हैंड स्प्रेड आउट, राइट? तो इसी तरह से एक लेग को उठा के जैसे कहते हैं बैलेंस करना, या कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीजें जो होती है पोस्चुरल मेंटेनेंस, और कल को कहीं जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज गर्म सी चीज पीछे से किसी ने टच कर दी आपके बॉडी में, यू रिफ्लेक्सली मूव योर जो भी ऑर्गन है वहां पे, या कोई इंसेक्ट बाइट हो गया है, योर हैंड रीचेस टू द साइड इमीडिएटली। तो ये सारी चीजें जो बनी हैं ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हैं बॉडी के, ठीक है? इसलिए इसमें हायर सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती। डिफेंस एक ऐसी चीज है, ऑफेंस एंड डिफेंस बोथ। ये लोअर एनिमल्स में भी अगर तुम देखो, जिनके पास और ज्यादा लोअर एनिमल्स में जो होता है डिफेंस एंड ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों ही ये जो सिस्टम होता है ये वेल मेंटेन्ड होता है इवन इन लोअर एनिमल्स। तो ये डिफेंस का पॉइंट व्यू है, बैलेंसिंग के लिए है, ठीक। अब हम ध्यान देते हैं कि इसमें देखो ये सब फिजियोलॉजी का पार्ट है। रिफ्लेक्स आर्क जो काम की बात थी मैंने बता दिया, इट्स अ फिजियोलॉजिकल यूनिट, और इसमें स्केलेटल मसल्स एक्ट सबकॉन्शियसली एट द स्पाइनल लेवल, नो कनेक्शन विद द हायर सेंटर्स। और थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं बाइसेप जर्क ये कैसे कराए जाएंगे। ये तो हमारे फिजियोलॉजी में ह्यूमन लैब में कराया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग बाइस, हाँ, तो ये कहने का मतलब है ये कैसे कराए जाते हैं, किस टेंडन को ऑब्वियसली टैप करते हैं, ये तुम्हें पता है। बाइसेप्स जर्क में ऑब्वियसली बाइसेप्स ब्रेकियाई को टैप करते हैं, कैसे टैप करते हैं, किस तरह से फ्लेक्स करके कराते हैं, ये सब तुमको डिटेल में पढ़ाया जाएगा फिजियोलॉजी में। एंड ये याद रखो C5 C6 रूट नंबर्स एक्चुअली थोड़ा सा याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि इंजरी के दौरान ये रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए C5 C6 इन्वॉल्व होता है। एंड टेंडन जर्क्स में भी ये तो बहुत बार मैंने बोल रखा है कि अगर लोअर मोटर फेशियल नर्व पढ़ा हो, फेशियल नर्व मैंने कहाँ पढ़ाई थी, मैंने ब्लड सप्लाई पढ़ा रहे थे शायद फेस की, देन आई टॉक्ड अबाउट लाइक दैट फेशियल नर्व पाल्सी और बेल्स पाल्सी। तो बताया था कि लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस जब होती है
तो इप्सिलेटरल होती पहली चीज, जिस साइड की नर्व कटेगी उस साइड डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो नर्व्स कंप्लीट पैरालिसिस में जाएंगी एंड मसल्स विल बी फ्लैसिड, राइट। एंड इन दैट केस इन अ नर्व लोअर मोटर नर्व पैरालिसिस में देयर विल बी नो जर्क्स, ठीक है, एब्सेंट जर्क हो जाएगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद अगर नर्व में डैमेज होता है या एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के एंड के आगे कहीं डैमेज होता है तो दैट्स लोअर मोटर, और उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होगी, जर्क्स विल बी एब्सेंट। इंस्टेड अब सोचो हायर अपर मोटर न्यूरॉन में इंजरी, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो डिसेंडिंग न्यूरॉन्स हैं रीचिंग अप टू द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और द सेरेब्रल नर्व न्यूक्लियस, वो तो कहलाते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, इसमें अगर कहीं इंजरी होती अपर मोटर न्यूरॉन में तो फिर क्या होगा, द जर्क्स विल बी एग्जैजरेटेड। रिमेंबर, ये जो जर्क है ये नॉर्मल जर्क होता है, एक हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि जरा सा टैप किया नहीं कि हाइपर एक्सटेंशन, सो एग्जैजरेटेड द जर्क्स, टेंडन जर्क्स बिकम एग्जैजरेटेड इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स और लॉस्ट इन एंड इट बिकम्स लॉस्ट इन लोअर मोटर, क्योंकि इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट का यूज होने लगता है इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। अगर कहीं अपर मोटर में दो रूट होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन के, एक पिरामिडल ट्रैक्ट होता है, एक एक्स्ट्रा पिरामिडल, तो जब पिरामिडल ट्रैक्ट में लीव होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल रोल में आ जाता है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से देयर विल बी एग्जैजरेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राइसेप्स जर्क में ऑब्वियसली ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को हिट करेंगे एंड रूट नंबर्स विल बी C7 8। ट्राइसेप्स की नर्व सप्लाई बताओ जल्दी से, व्हिच मसल सप्लाइज ट्राइसेप्स ब्रेकियाई? रेडियल नर्व, ओके ठीक। नी जर्क तो हमने भी बता ही दिया है, इसमें नी जर्क का रूट नंबर L3 L4 याद रखना, फिमोरल नर्व का जो कंपोनेंट है उसमें L3 L4 थ्रू द nerve to vastus medialis reaches the knee joint. Then ankle jerk में टेंडो एक्लिस में टैप करते हैं। एंकल जर्क की अगर हम बात करें तो जो टेंडन पे हम ऐड करते हैं वो कौन सी मसल होती है? टेंडन ऑफ विच मसल इट इज हिट while performing the ankle jerk? It is एंकल जर्क में हम किस मसल के टेंडन पे टैप करते हैं? गैस्ट्रोनीमियस। गुड। गैस्ट्रोनीमियस की नर्व सप्लाई बताना जल्दी से। इस गैस्ट्रोसोलियस टेंडन इज एक्चुअली अ कंबाइंड टेंडन ऑफ गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस, तो गैस्ट्रोसोलियस कहते हैं। नर्व सप्लाई बताओ। यस, इट इज टिबियल नर्व। सिमरन, अब्दुल समद, निखिल जी, पोस्टीरियर टिबियल नर्व नहीं होती है, ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है, नर्व सिर्फ टिबियल नर्व ही होती है, ठीक। तो टिबियल नर्व सप्लाई करती है गैस्ट्रोसोलियस को, और एंकल जर्क उससे S1 S2 सेगमेंट्स इलिसिट करते हैं इसमें। ये शियाटिक नर्व की ब्रांच है, तो टिबियल नर्व के रूट नंबर्स तुम्हें पता ही होंगे, L4 L5 S1 S2 S3, राइट। तो वेंट्रल डिवीजन से निकलती है टिबियल नर्व। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स जो होती हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल पे स्क्रैच करते हैं, तुमने हैमर कभी पीछे से खोल के देखा, उसमें पॉइंटेड टिप होता है, तो वो स्क्रैचिंग पर्पस में काम आता है, तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें क्या होता है, थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स की बात आती है। थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स आर T7 to T12। तो T7 to T12 के लिए एब्डोमिनल रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। प्लांटर रिफ्लेक्स जो होता है ये सोल पे, लेटरल बॉर्डर ऑफ द सोल पे नीचे से, यानी फ्रॉम द हील देन लोअर बॉर्डर देन टू द टोज विल मूव दिस आर्क स्क्रैचिंग द सोल फ्रॉम द लेटरल साइड टुवर्ड्स द बिग टो, ठीक है। तो इसमें प्लांटर रिफ्लेक्स नॉर्मल क्या होता है, देयर विल बी प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एंड अदर टोज। नॉर्मल इंसान में प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो ग्रेटर टो एंड लेसर टोज फ्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। और नॉर्मल रिस्पांस आने से पता चलता है कि पिरामिडल ट्रैक्ट जिसे कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स का बंडल जो है, अपर मोटर न्यूरॉन्स का सॉरी, जो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स हैं उनका बंडल जो है वो पिरामिडल ट्रैक्ट है यहाँ पे, तो वो नॉर्मल है। अब इसका रिवर्स अगर ये नॉर्मल नहीं होता है तो इसको कहते हैं बेबेनिस्की साइन, ठीक है। तो बेबेनिस्की साइन इज
सेम एज इन प्लांटर रिफ्लेक्स वैसे ही हम इसको इलिसिट करते हैं, बट इसमें रिस्पॉन्स उल्टा आता है। बेबेनिस्की साइन में क्या होता है कि द ग्रेटर टो इज गोज इनटू डॉर्सीफ्लेक्शन एंड देयर विल बी फैनिंग ऑफ द टोज, ठीक। नाउ बेबेनिस्की साइन जो है ये चूंकि इट इवॉल्व्स द बिगेस्ट ट्रैक इज द पिरामिडल ट्रैक, जो कि ऊपर से आ रहा है कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक, एंड देयर इट्स हाईवे रूट, बड़ा रूट होता है ये, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ माइलिनेशन। और वही बात होती है कि माइलिनेशन कंप्लीट होता है अराउंड 3 years ऑफ लाइफ में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसमें इन्फेंसी में बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव आ जाता है। अदरवाइज याद रखना अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, यानी कि अगर पिरामिडल ट्रैक में कोई लीजन है तो भी बेबेनिस्की साइन पॉजिटिव आएगा। देयर विल बी डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेटर टो एंड फैनिंग ऑफ द लिटिल टोज। सो ये चीज याद रखना एक इन्फेंट्स में और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ऐसा होता है। ये शौर्य पता नहीं है S1 S2 क्यों लिखे पड़े हुए हैं, वेंट्रल, अच्छा ये वहां पे लिखा है एंकल जर्क पे, ओके। हम इसे सोल पे प्रेस करते हैं, अरे इसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं होती स्पर्श, ये जो रिफ्लेक्स है कैसे इलिसिट करते हैं वो तुमको यहाँ दिखाया गया है। यहाँ से यू नो यहाँ पे जो है ना हैमर है, अब हैमर के पीछे एक पॉइंटेड प्रोसेस भी होता है। सो यू स्क्रैच फ्रॉम द हील, देन लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट अप टिल द बॉल ऑफ द ग्रेटर टो, ये ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रैच द लेटरल बॉर्डर अप टिल द ग्रेटर टो, and doing this normally this should all flex, the greater toe and little toes they all should flex, but if there is dorsiflexion of the greater toe and fanning of the rest of the toes, it indicates upper motor neuron lesion जिसे कहते हैं, pyramidal tract का lesion show करता है, ठीक है। this is how you elicit this Babinski sign। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, देखो हम धीरे धीरे से सारी चीजें से होते हुए चले आए हैं, क्लासिफिकेशन बता दिया है, सेलुलर आर्किटेक्चर बता दिया, ग्रे वाइट बना दिया, बिकॉज हम स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आई बिलीव कि अभी जिसने जिसने भी फोकसिंग नहीं दिमाग में कंसंट्रेशन नहीं किया है वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए, बिकॉज आई टेल यू आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा अगर अभी का नहीं समझ में आएगा। तो मेक श्योर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हैंड टू हैंड उसी दिन रिवाइज कर लो बुक से, ठीक। नाउ वी मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, इफ यू नो नीचे से अगर ऊपर जाएं तो सबसे पहले एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कैनाल का कंटेंट होता है एंड इट रीचेस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 इन एडल्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड का पर्पस होता है इट कैरीज द सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि बॉडी की पेरिफेरली से, यानी कि स्किन एक्सट्रोसेप्टिव रिसेप्टर से, बॉडी के विसरा से जो सेंसेशंस हैं, यानी कि एंटेरोसेप्टिव सेंसेशंस, या जॉइंट से आ रहे हैं तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, सारे सेंसेशंस ट्रंक से एक्सेप्ट द हेड रीजन को छोड़ के, हेड एंड रीजन को, ये सारे सेंसेशंस इसके थ्रू जाते हैं। और वेगस को छोड़ करके, ऑब्वियसली वेगस तो सेपरेट रूट चल रही है, ऑल्दो वेगस भी आती है ट्रंक में, लेकिन बाकी की जो सोमैटोसेंसरी सेंसेशंस हैं वो इसके थ्रू असेंड करते हैं, एंड ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली फिर जो हायर सेंटर से जो डिसेंडिंग न्यूरॉन्स हैं दे आल्सो ट्रेवल टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द एंटीरियर हॉर्न, एंड अकॉर्डिंगली वहां से इफेरेंट्स निकलते हैं टू परफॉर्म द करस्पॉन्डिंग एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड, एंड डोंट फॉरगेट कि स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो द साइट फॉर प्रीगैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक S2 3 4 में है और सिंपैथेटिक T1 और L2 तक है, ओके। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड में ऑटोनॉमिक कंपोनेंट भी है, सेंसरी भी है, मोटर भी है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये ऊपर जाएगा जब फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड अंदर एंटर करेगा, यहां तक की स्पाइनल कॉर्ड है। नाउ दिस पोर्शन व्हेन इट एंटर्स द ब्रेन, एंटर्स द क्रेनियम, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स हैं। रोस्ट्रल, रॉस्ट्रल इज समथिंग एट द कॉर्डल एंड,
क्रेनियल ऊपर होता है, तो रॉस्ट्रल टू क्रेनियल इफ यू सी मेडुला, देन यू हैव पॉन्स एंड देन यू हैव मिड ब्रेन। 3 कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेन स्टेम के। अच्छा, तो अब मेडुला जो होता है, द अपर डायलेटेड पोर्शन जो होता है इसका स्पाइनल कॉर्ड का कंटिन्यूटी में, तो मेडुला इज बेसिकली, इसको बस थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। मेडुला एक तरह से इट्स अ चीफ साइट फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर्स एज वेल एज ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। जो ये इसका जो पर्पस है, ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें लोअर 4 क्रेनियल नर्व्स भी इसमें आती हैं, लेकिन हम प्राइमरली अगर एक छोटी सी लाइन में बोलें तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड बीपी कंट्रोल सेंटर्स जो होते हैं वो इसके प्राइम सेंटर्स हैं। मतलब अदरवाइज तो बहुत कुछ है इसमें, ट्रैक्स भी हैं और जैसे मैंने बताया न्यूक्लियरिनल नर्व न्यूक्लियाई भी हैं, बट प्राइमली इसको याद रखना है, अगर मेडुला का मतलब भैया रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ये दोनों यहाँ कंट्रोल किया जाता है। पॉन्स की बात करें तो पॉन्स जो है ये कनेक्टेड है डायरेक्टली सेरिबेलम से, क्रेनियम से भी, ठीक है। तो पॉन्स जो है, एंड पॉन्स में न्यूक्लियाई भी है क्रेनियल नर्व, खासतौर से क्रेनियल नर्व 5th क्रेनियल नर्व, 6th and 7th क्रेनियल एंड 8th, 5th 6th 7th 8th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस भी होते हैं। एंड पॉन्स बेसिकली एक तरह का रिले सेंटर है फॉर क्या नाम है, कॉर्टिको सेरिबेलर ट्रैक्ट्स के लिए, जो कॉर्टेक्स से फाइबर जाते हैं सेरिबेलम में एंड एल शेपेड ट्विस्ट टर्न ले लेते हैं सेरिबेलम के लिए। तो इट्स अ बिग साइड, अगर तुम ब्रेन स्टेम में देखोगे द डायलेटेड पोर्शन इज द पॉन्स, ठीक है। तो इसमें कॉर्टिको सेरिबेलर फाइबर्स का रिले सेंटर भी होता है पॉन्स में, ठीक। मिड ब्रेन की अगर बात करें, नाउ मिड ब्रेन इज क्रेनियल टू द पॉन्स, एंड मिड ब्रेन जो है प्राइमरली अगर एक पॉइंट में देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आई बॉल मूवमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3rd और 4th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई भी हैं, साथ साथ इसमें मीडियन लॉन्गिट्यूडनल बंडल भी है विच इंटीग्रेट्स द सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ विजन एंड सेंस ऑफ बैलेंसिंग, ये सब कुछ इसमें आता है। तो उसके बाद ये मूवमेंट ऑफ द आई जो है वो कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम का क्या पर्पस है? सेरिबेलम का ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से सोमैटोसेंसरी इंपल्सेस आ रहे हैं, it receives impulses from spinal cord, the somatosensory impulses, then it receives the efferent impulses from the cerebrum, वो भी इसमें आ रहे हैं, and it receives the vestibular nerve fibers, यानी vestibular nerve fibers 8th nerve से जो fibers आ रहे हैं bringing impulse of balancing, they also reach the cerebellum. So it actually integrates the information collected from the spinal cord, from the cerebrum, from the vestibular nerve nucleus, and integrates, then coordinates accordingly the contraction or action of different skeletal muscles according to the time. Remember, time is very important. Time and the pattern of contraction of different muscles. There are antagonistic and agonistic muscles, right? जैसे biceps and triceps. अगर biceps contract होगी तो triceps relax होगी. So antagonistic muscles होती हैं. At the same time हम एक muscle को contract कराने, other muscle has to be relaxed, right? So ये cerebellum का जो purpose है समझ में आ गया. It collects sensory information from the spinal cord, effector impulses from the cerebrum, and vestibular sensations from the vestibular nerve nucleus, and integrates them, coordinates them, plans and timing, managing time according to the time. It sends impulses for the patterned way of contraction of muscles for the purpose of ultimately काम क्या करेगा, ये तो इसका कर रहा है, रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका? सेरिबेलम का पर्पस है टू मेंटेन द टोन ऑफ द मसल्स, टू मेंटेन टोन, पोस्चर, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी 2 तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन योर फुट, दैट इज स्टैटिक, और दौड़ रहे हैं, दौड़ने के टाइम भी बैलेंस मेंटेन रखना है, दैट इज काइनेटिक बैलेंस। तो
जो है इसका सेरिबेलम का पर्पस समझ में आया है। सेरिबेलम का पर्पस है मेंटेनेंस ऑफ टोन, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, अलर्टनेस एट द सेम टाइम, और काइनेटिक बैलेंस भी मेंटेन रखना है। तो ये है सेरिबेलम। ठीक, अब तुम सोचो कि जो टू लेग्ड एनिमल्स हैं, इन दैट इंक्लूड्स एनिमल दैट इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग्स, लाइक टू लेग्ड, जिसपे दो ही पांव पे हम ह्यूमन बीइंग्स बैलेंस रखते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, एव्स, चिड़िया। ये दो ऐसे जानवर हैं जो टू लेग्ड होते हैं, एव्स एंड ह्यूमंस। और फोर लेग्ड भी होते हैं, फोर लेग जितने हैं, काउ, बफलो, डॉग, कैट, व्हाटएवर। इमेजिन करो ये सब खड़े हुए हैं और इनमें से एक एक की डेथ होती जाए, तो व्हाट हैपेंस इज, जब डेथ होती है तो बंदा कंट्रोल, बैलेंस खत्म हो जाएगा, बंदा गिर जाएगा। चाहे वो फोर लेग्ड एनिमल्स, आई एम टेलिंग यू, इसलिए कि एक कोई चिड़िया हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो, द मोमेंट ही लूजेस कंट्रोल ऑन दिस नर्वस सिस्टम, ही फॉल्स डाउन। चाहे वो फोर लेग्ड एनिमल्स हो, है ना, जो क्वाड्रूपेडल है उनमें भी यही होगा। डेथ होते ही दे कैन नॉट स्टैंड ऑन द फोर लेग्स। कहने के लिए चार लेग, जैसे कार के चार पहिए होते हैं, बाइक में दो होते हैं। तो बाइक पे तो कंटिन्यूअसली अलर्ट रहोगे तो बैलेंस रहेगा, अलर्ट नहीं रहोगे तो बैलेंस, बाइक गिर जाएगी। लेकिन कार एटलीस्ट बैलेंस तो नहीं खोएगी ना, रखी तो रहेगी। बट यहाँ पे इसलिए कंपैरिजन बताया कि फोर लेग्ड एनिमल्स में भी यही है कि द मोमेंट दे लूज द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे फॉल डाउन, चाहे वो चार पांव पे तब भी। क्योंकि द रीजन इसमें क्या है, वो अच्छा सोचने की बात है, फोर लेग्ड एनिमल से चार पांव पे खड़ा हुआ है, जैसे कार होती चार पहिए पे, तो ये अनकॉन्शियस होते ही या डेथ होते ही गिर क्यों जाते हैं? फिर जब चार पांव है तो खड़े रहने चाहिए, डेथ होने के बाद भी। इसका रीजन समझ में आया? इसका रीजन ये है कि जो इनके चार लेग्स हैं, चार लेग्स हैं, यस, लॉस ऑफ टोन ऑफ मसल्स भी वही रीजन है। उसके बाद ये है कि इनके जो लेग्स हैं इसमें जॉइंट्स हैं, इनमें नी जॉइंट्स है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, राइट। तो इनमें जॉइंट्स हैं, एंड जॉइंट्स में सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन जाता रहता है कंटिन्यूअस सबकॉन्शियसली, जिसकी वजह से मसल टोन मेंटेन रहती है। मसल का सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, हमें जो सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन इज व्हाट, यू आर अलर्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, यू आर अलर्ट ऑफ योर जॉइंट्स, वो सेंस चला जाता है, ठीक है। और मसल टोन जाते ही इंसान बैलेंस हो जाता है, कोई भी एनिमल होगा तो भी, एंड ही फॉल्स डाउन, ठीक है। तो अगर यही फोर लेग्स अगर आयरन के हो या वुडन हो तो खड़ा रहेगा बंदा, एनिमल गिरेगा नहीं। समझ में आएगी? बिकॉज ये वाला रीजन है, यानी कि सेरिबेलम इज ऑल द टाइम वर्किंग टू मेंटेन। और एक बात है, ये जो फंक्शन है, इसी से एग्जांपल जो तुमको दिया एनिमल से, यानी ये कोई इवॉल्व फंक्शन नहीं है सेरिबेलम का। समझ में आई बात? ये कोई इवॉल्व फंक्शन नहीं है कि हम ह्यूमंस हैं तो हमारे बहुत एडवांस है। ये लोअर से लोअर एनिमल्स में बना होता है फंक्शन बैलेंसिंग का, ठीक। देन डायनसेफ्लॉन पे आते हैं। अब डायनसेफ्लॉन इज समथिंग मोर क्रेनियल to the brain stem, mid brain actually is connected to the diencephalon। यानी कि डायनसेफ्लॉन में अगर हम जाएंगे तो डायनसेफ्लॉन के दो पार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स, और अदरवाइज में थैलेमस के भी सब पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, मेटाथैलेमस। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर द टू पार्ट्स ऑफ द डायनसेफ्लॉन। थैलेमस का कोई काम, मेजर काम क्या है, आज सुबह ही बताया था मैंने। इट इज द थैलेमस के बारे में बताया था, ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटायर ह्यूमन बॉडी, मे बी टच, टेम्परेचर, टेस्ट, प्रेशर, स्मेल, आई मीन इसमें ये क्या नाम है, विजन, टेस्ट, हियरिंग, ऑल इंफॉर्मेशन रीचेस टू द थैलेमस फॉर रिले। वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, एंड आफ्टर बीइंग रिलेड देन दे आर असेंडेड अप टू द हायर सेंटर्स। तो ये भी पूछा था एक्सेप्ट ओल्फैक्टरी, याद है स्पर्श को, ठीक है। ओल्फैक्शन छोड़ के बाकी सब चीजों के लिए रिले सेंटर है थैलेमस। एंड इसके साथ साथ ये जो सेंसेस आते हैं, जैसे मैंने बताया ना, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड मसल स्पिंडल से जो आते हैं, यानी कि थैलेमस इज वन थिंग विच ऑलवेज मेंटेन्स द डिग्री ऑफ अलर्टनेस।
यानी कि सुबह शाम है, ये जो ओरिएंटेशन ऑफ टाइम है, एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और उसको बंद कमरे में रखा है, क्या उसको सुबह शाम का फर्क नहीं पड़ता? उसको भी आइडिया हो जाता है कि सुबह हुई है, रात हो गई है, वॉटेवर। यानी ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेस, वो खुद भी बता सकता है, हम अपने घर पे नहीं है, कॉलेज में है, बिल्डिंग को देख करके। ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, यानी दूसरे को पहचानने का। तो हर तरह का जो सेंसेशन पहुंच रहा है थैलेमस से, इससे एडवांटेज क्या मिल रहा है? दैट यू आर गेटिंग अलर्ट ऑल द टाइम। ये अवेयरनेस के लिए भी एक सेंटर है, यानी कि ऑल दी सेंसेशंस अल्टीमेटली मेक यू अलर्ट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अलर्टनेस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय थैलेमस। फिर बात करते हैं हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस जो है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का चीफ पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे तो अलर्टनेस थी ना, ये तो सोमैटो सेंसरी इंपल्सेस सारी थी। नाउ हाइपोथैलेमस में सारे ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, जितने ऑटोनॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं, दे आर रीचिंग द इम्पल्सेस, दे रीच टू हाइपोथैलेमस। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑटोनॉमिक कंट्रोल यानी कि सिस्टम्स के, it also is controlling the secretions of posterior pituitary. If you remember, pituitary is actually an extension of the hypothalamus. ठीक है, तो the median eminence के थ्रू ये extension होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी विसरल फंक्शंस हैं, सबके हायर सेंटर्स यहाँ थैलेमस में, इंक्लूडिंग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, अल्टीमेटली द हाईएस्ट सेंटर इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बात आई तो फिर वही बात ने बताया कि ह्यूमन बींग्स के सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो ग्रे मैटर है, दैट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड होमियो सेपियंस। सेपियंस वी आर इवॉल्व्ड इन अदर एनिमल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस द हमारे में इवोल्यूशन है। देखो, खाने पीने के लिए सोच खाना पीना हुआ, सेक्स करना हुआ, स्लीपिंग हुआ, अलर्टनेस हुआ, ये सब लोअर एनिमल्स में भी है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में व्हाई इट्स बीइंग इवॉल्व्ड, द पावर ऑफ इंटेलेक्ट इज द पावर ऑफ जजमेंट, द पावर ऑफ इनसाइट, द पावर ऑफ मेमोरी, द पावर ऑफ स्पीच, देन द पावर ऑफ इमोशनल कंट्रोल्स। ये सारी चीजें जो हैं, ये ह्यूमन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के एडवांस्ड एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देन अब ये सब कुछ बन जाने के बाद, इस पूरा, आई टोल्ड यू न्यूरल ट्यूब से बनता है, तो इनसाइड इट इज ऑल हॉलो, there is a cavity inside, and that is called ventricular system. And ventricles of the cerebral hemispheres is called lateral ventricle. Ventricle of the diencephalon is called the third ventricle. Ventricle of the midbrain is called aqueduct. Ventricle of pons and medulla is called the fourth ventricle. Space within the spinal cord is central canal, and the terminal portion here, it again dilates to form the terminal cistern. Or there are two cerebral hemispheres. When you approximate the two cerebral hemispheres, तो बीच में दोनों के septum pellucidum के बीचवीन भी एक ventricle बनता है, that is called the fifth ventricle. तो in short, एक बार ये पूछा गया था how many ventricles are there, तो आंसर लगाओगे 6 ventricles, याद रखना। ठीक है, और फिर ये सब कुछ whatever you have seen is CNS, and it all is wrapped up from outside by 3 coverings. You have pia mater, arachnoid matter, dura mater. There are 3 meninges which cover them, और meninges जो हैं एक तरह का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन भी बाहर से प्रोवाइड करती हैं, जो CSF होता है, और बोएंसी यानी कि जो फ्लोटिंग फीलिंग आती है इसकी ब्रेन की, वो बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि ब्रेन का वेट कितना होता है? ब्रेन का वेट होता है अराउंड 1.5 kg, 1.5 से ज्यादा भी होता है। ठीक है, तो उस के हिसाब से जब ये CSF में रखा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से CSF में द वेट फील्स, उदय जैन, इट अराउंड 50 ग्राम, जो करेक्ट 50 ग्राम का फील लगता है वेट का, और वो 50 ग्राम का वेट बहुत नॉर्मल सा वेट है, विच एवरीबडी कैन इजिली कैरी। तो विद इन द CSF द वेट ऑफ ब्रेन इज अराउंड 50 ग्राम्स। ठीक, तो ये कंपोनेंट्स थे, और फिर ये तुमको हम सब बता चुके हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये सोमैटोसेंसरी, ये सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, अच्छे से समझ लिया है ना सब कुछ? ओके, हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स की।
सेंसरी एफरेंट रिसेप्टर्स और मोटर और इफरेंट रिसेप्टर्स। ठीक है, तो एफरेंट जो है, देखो रिसेप्टर्स दोनों के होते हैं। सेंसरी जहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कमेंस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, वो सेंसरी एफरेंट। मोटर इफरेंट मींस जहां पे मोटर नर्व फाइबर्स टर्मिनेट कर रहे हैं, दे आर मोटर और इफरेंट रिसेप्टर्स। ठीक, फिलहाल हम बात करते हैं सेंसरी में। तो सेंसरी में जो कॉमनेस्ट टाइप है इज द फ्री नर्व एंडिंग्स। ये फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं ये डर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे बहुत पाई जाती हैं। इनफैक्ट ये फ्री नर्व एंडिंग्स अंदर विसरा में भी होती हैं। और अभी तुम्हें पेरोटिड पढ़ा था, याद करो, तो पेरोटिड में जो आउटर कैप्सूल है दैट इज टीथर टू द पेरोटिड सब्सटेंस एंड इट इज थिक। एंड बिकॉज मैंने बताया था मम्स में और बहुत सारी ऐसी कंडीशन में जहाँ स्ट्रेचिंग होती है तो उसमें पेन होता है, राइट। तो फ्री नर्व एंडिंग्स आर सीन नॉट ओनली इन द स्किन, इट ऑल्सो इज सीन इन द कैप्सूल्स ऑफ द ग्लैंड्स, इट ऑल्सो इज सीन इन द स्केलेटल मसल्स एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में भी मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू में भी फ्री नर्व्स एंडिंग्स होती हैं। हेयर फॉलिकल्स, डोंट फॉरगेट, हेयर फॉलिकल्स के नीचे भी बहुत सारी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसलिए प्लकिंग ऑफ हेयर is also painful and don't forget कि nail beds पे भी free nerve endings होती हैं। तो free nerve endings remember एक और बताएं कि free nerve ending को pain से ही relate मत करना, pain के लिए तो होती हैं। The sensations carried through the free nerve ending is not only pain, pain is of course the chief sensation which is received from the free nerve endings, but pressure stretch vibration ये सब चीजें भी इससे carried होती हैं। अब हम बात करते हैं मर्कल्स डिस्क। मर्कल्स डिस्क जो होती है, ये जो होती है नर्व एंडिंग्स जो होती हैं ये डायलेटेड होती हैं। ये भी कहाँ मिलती हैं? इन द क्या कहते हैं, पैपिलरी पोर्शन ऑफ द डर्मिस में मिलेंगे मर्कल्स डिस्क। और मर्कल्स डिस्क भी प्रेशर सेंसेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, स्लाइड टच जो होता है ना प्रेशर, उसके लिए मर्कल्स डिस्क होते हैं। देन ये दोनों कभी एमसीक्यू में रूल आउट करने में आ जाए कि इनकैप्सुलेटेड एंड नॉन इनकैप्सुलेटेड, तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों रिसेप्टर्स आर नॉट कैप्सुलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे। रेस्ट ऑफ द इवन दीज रेस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स दे आर ऑल इनकैप्सुलेटेड। तो एक डिफरेंस तुम्हें मिल गया है, कल को फ्री नर्व एंडिंग्स को रूल आउट करने को आ सकता है, तो याद रखना it is not an encapsulated Merkel's disc is not encapsulated receptor, otherwise then all of them are encapsulated. Now let's see then encapsulated nerve endings जो होती हैं वो डर्मिस में कौन कौन सी हैं? tactile corpuscles of Meissner's। ठीक है, तो मीजनर्स कॉर्पसल्स नाम सुना है, मीजनर्स प्लेक्सस भी तुमने पढ़ रखा है। ये जीआईटी में किस लेयर में होते हैं मीजनर्स प्लेक्सस? किस लेयर में होते हैं? सब म्यूकोजा और मस्कुलर? मोहित कुमार, अभिषेक सिंह, yes it is Meissner's plexus in सब म्यूकोजा। ठीक है, याद रखना, ये माइंट्रिक प्लेक्सस जो होता है वो मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो मीजनर्स इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा। तो मीजनस वो तो नर्व प्लेक्सस था, यहां पे हम बात कर रहे हैं मीजनस कॉर्पसल्स। नाउ मीजनस कॉर्पसल्स इंपॉर्टेंट याद रखना, ये टच सेंसेशंस के लिए है। ठीक है, इवन द स्लाइट टच। तो मीजनस कॉर्पसल्स, अब यहाँ पे जितने जब कॉर्पसल्स जब नाम आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये याद रखना चाहिए कि दे आर इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन्स। तो टेक्टाइल कॉर्पसल्स ऑफ मीजनस, ये टेक्टाइल कॉर्पसल्स जो होते हैं ये भी कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे इन द बिलो द एपिडर्मिस यानी पैपिलरी डर्मिस में। ठीक है, देन देयर आर पेसिनियन कॉर्पसल्स, जिसे कहते हैं लैमिलेटेड कॉर्पसल्स। इसमें भी जो कवरिंग है ये मल्टीपल कवरिंग होती है, जिसकी वजह से देयर कॉल्ड लैमिलेटेड पेसिनियन कॉर्पसल्स। एंड पेसिनियन कॉर्पसल्स ये जो होते हैं ये पाए जाएंगे सबक्यूटेनियसली यानी कि बिलो द डर्मिस। देखो एक बात इसलिए हम बता रहे हैं, ये लोकेशन और टाइप ऑफ सेंसेशन
ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी नीट पीजी 2019 में आया गया था ये क्वेश्चन रिगार्डिंग पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, वेयर आर दे फाउंड, ये पूछा गया था। तो याद रखना, दे आर फाउंड इन द पैपिलरी डर्मिस। नो मीजनर्स के बारे में पूछा गया था, वो पैपिलरी डर्मिस में थे, होते हैं। एंड पेसिनियन कहाँ होते हैं? हाइपोडर्मिस, बिलो द डर्मिस, सबकी सुपरफिशियल फाशिया में होते हैं, ठीक। Rufinese corpuscles, now Rufinese are found deep in the dermis, ठीक है। Rufinese are also for pressure sensation, याद रखना। और Rufinese जो होते हैं ये डीपर डर्मिस मींस रेटिकुलर डर्मिस में पाए जाते हैं, ये प्रेशर सेंसेशंस के लिए होते हैं। क्राउस तो सबको पता है, दैट इज अ थर्मोरेगुलेटरी रिसेप्टर, इट थर्मल सेंस रिसेप्टर व्हिच फीलिंग ऑफ टेम्परेचर, वो सॉरी टेम्परेचर, कोल्ड एंड हीट। ये क्राउस जो होता है ये टेम्परेचर सेंसेशंस के लिए होता है, ठीक है। जॉइंट्स में कौन कौन से होते हैं रिसेप्टर्स? जॉइंट्स में होते हैं न्यूरोटेंडिनस, देखो न्यूरोटेंडिनस स्पिंडल ऑफ गोल्जी, यानी कि ये वाला जो हम बता रहे हैं रिसेप्टर, ये टेंडेंस में पाया जाएगा, ठीक। तो यानी ऑर्गन ऑफ गोल्जी, अगर देखो गोल्जी नाम भी कई जगह आ चुका है, ठीक है, इसकी भी एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। गोल्जी एपरेटस भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो है हाँ, ये वाला जो ऑर्गन ऑफ गोल्जी है ये कहाँ पाया जाएगा? टेंडन में, या तो मस्कुलो टेंडल जंक्शन पे पाया जाएगा। और दूसरा होता है न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल। न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल कहाँ पाया जाएगा? दिस इज अ स्पिंडल और दिस इज ऑर्गन। अगर पूछा जाएगा मसल स्पिंडल, दैट्स अ सेंसरी ऑर्गन, ये कहाँ पाया जाएगा? विद इन द स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स, यानी मसल के अंदर पाया जाता है, और ये टेंडन और मसल के जंक्शन में पाया जाता है। इसके अलावा मसल से जो पेन कैरी करते हैं फाइबर्स, रिमेंबर, उनको नोसिसेप्टिव फाइबर्स कहते हैं। तो नोसिसेप्टिव फाइबर्स आर द पेन कैरिंग फाइबर्स फ्रॉम द टेंडन्स एंड मसल्स इज नोसिसेप्टिव फाइबर्स, ठीक। इफेक्टर में क्या होता है? ऑब्वियसली इफेक्टर में मींस द लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो जाएंगे कहाँ? स्केलेटल मसल पे जाएंगे, स्केलेटल मसल पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट वो मसल का पोर्शन है जहां पे टर्मिनल बटन एक्सॉन का जुड़ता जाके। अब ये स्केलेटल मसल में भी होता है, स्मूथ मसल में भी होता है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये मोटर एंड प्लेट यानी कि motor neuron when it reaches to a skeletal muscle, let's say biceps या you can say trunk के लिए, तो एक चीज होती है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या होता है? जिसे कहते हैं मायोटोम। हैव यू हर्ड दिस डर्माटोम, मायोटोम? तो मायोटोम का मतलब जैसे होता है डर्माटोम, अ सिंगल स्पाइनल सेगमेंट व्हिच इनर्वेट्स अ टेरिटरी ऑफ द स्किन इज कॉल्ड अ डर्माटोम, राइट। तो सिमिलरली मायोटोम में होता है कि ये सिंगल न्यूरॉन और नर्व, आई मीन स्पाइनल सेगमेंट यू कैन से, कि जैसे T4 से जो नर्व फाइबर्स इमर्ज किए हैं वो जितनी स्केलेटल मसल फाइबर्स को इनर्वेट करेंगे, दैट टोटली इज अ मायोटोम। सो स्केलेटल मसल्स के बारे में बता रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स आते हैं, एक न्यूरॉन को मानते हैं, एक न्यूरॉन not only ends in a single muscle fiber. Let me tell you that if a motor neuron approaches a skeletal muscle, it ends, the terminal button of a neuron, motor neuron, will end on multiple muscle fibers. It can be hundreds of muscle fibers, it can be few muscle fibers, right? तो अब सोचने वाली बात है कि जितने ज्यादा मसल फाइबर्स में इंसर्ट होगा ये, ठीक है, जितने ज्यादा मसल फाइबर्स पे इंसर्ट होगा एक न्यूरॉन, उतना प्रिसाइज एक्शन होगा या उतना वेग एक्शन होगा? यस, उतना ही डिफ्यूज होगा। सिमरन, यू शुड करेक्ट दिस थिंग। डिफ्यूज एक्शन होगा, यानी कि एक वेग एक्शन इसलिए बोला, जैसे कि प्रॉक्सिमल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, यानी कि शोल्डर एंड हिप जॉइंट से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं उनकी मसल्स, नेक मसल्स एंड ट्रंक मसल्स,
इन मसल्स के जो मायोटोम्स हैं, इनके सिंगल न्यूरॉन दे एक्ट ऑन हंड्रेड्स ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। बट if you talk about the intrinsic muscles of hand, the muscles of eyelids, the muscles of lips, ठीक, तो इन जगह पे एक न्यूरॉन वेरी फ्यू मसल फाइबर्स को इनर्वेट करता है फॉर द प्रिसाइज एक्शन, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, राइट। दैट्स व्हाई आई सेड जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द पाम एंड हैंड है, इसमें मोटर एंड प्लेट जो होती है, एक मसल फाइबर इंसर्ट्स ऑन ओनली फ्यू मसल फाइबर्स so as to bring about a precise action. अब स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, तो स्मूथ मसल्स में क्या होता है कि मोटर एंड प्लेट स्मूथ मसल में भी एंड होगी, कार्डियक मसल्स में भी एंड होती है, ऑब्वियसली कंट्रैक्शन कराना है तो, और स्मूथ मसल में थोड़ा गैप ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक बार डायग्राम देख करके हम सारे रिसेप्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं। There you seeing is a skin, this is the epidermis, then you have this dermis and this much portion, ये अपनी बुक में करेक्ट कर लेना, ये एक्चुअली यहाँ से hypodermis है, which you call as subcutaneous tissue और superficial fascia, okay। Now look here, ये है free nerve endings, ये they are all traveling, you know, subcutaneous tissue is actually the neurovascular plane, सारी nerves and vessels यहाँ चलती हैं। So the nerve fibers which reach to the stratum basal, you know, these are the stratum basal, the basilar cells, they cross the dermis and they innervate the basal epithelium. So these are the free nerve endings। और मैं पहले भी बता चुका हूँ डिग्री ऑफ बर्न्स में, जो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं, टेल मी विच डिग्री ऑफ बर्न इज मोर पेनफुल, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। यस आकाश, सेकेंड डिग्री होता है। द रीजन इज सेकेंड डिग्री में क्या होता है, ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे पार्टली टियरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, द नर्व एंडिंग्स गेट्स एक्सपोज्ड। लेकिन फर्स्ट डिग्री बर्न में ओनली द अपर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस आर ब्लिस्ड शेड होते हैं, तो इसकी वजह से फर्स्ट डिग्री में ज्यादा पेनफुल नहीं होगा। सेकेंड डिग्री मोस्ट पेनफुल, थर्ड डिग्री बिल्कुल पेन नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ चार यानी कि कोयला बन के हट जाती है स्किन पूरी, तो इसलिए थर्ड डिग्री ज्यादा पेनफुल नहीं होती। तो उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद सकते हो कि कल को कोई इस तरह का एमसीक्यू आता है कि वेयर एक्चुअली यू फाइंड फ्री नर्व एंडिंग्स, तो याद रखना देयर इनरवेट द स्ट्रैटम बेसल, बेसल जर्मिनल एपिथेलियम को इनर्वेट करती। और इसमें टाइप ऑफ सेंसेशंस, जैसे मैंने बताया, पेन तो तुमको याद ही रहना है, फ्री नर्व एंडिंग्स से रिलेटेड है। अदरवाइज टेम्परेचर, टच एंड स्ट्रेच, ये भी सेंसेशंस लेंगे, ठीक है। अब ये पाए कहां जाएंगे, स्ट्रैटम बेसेल में तो पाई जाएंगे इफ यू टॉकिंग अबाउट द स्किन, डर्मिस में भी हो सकते हैं, अराउंड द हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, अभी मैंने बताया नेल्स बेड में भी होते हैं, फाशिया, टेंडन, लिगामेंट, कैप्सूल, पेरिटोनियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम, शीट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो पेन होता है माइग्रेन रिलेटेड, ब्लड वेसल रिलेटेड, पल्सेटाइल हेडेक, वो ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका एडवेंटिशिया में भी नर्व फाइबर्स होते हैं। और बताएं इंटेस्टिनल पेन जो होते हैं, स्टमक एक वगैरह, वो पेरिटोनियम रिलेटेड भी होते हैं। और फिर मैंने बताया कि पेरिकॉन्ड्रियम एंड पेरिओस्टियम, अगर हड्डी टूट जाए तो याद रखना फ्रैक्चर में जो पेन होगा वो हड्डी की नहीं, पेरिओस्टियम की वजह से पेन होगा। पेरिओस्टियम में नर्व फाइबर्स होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, गॉट इट। तो इस तरह से ये तुम्हें पता चल गया, ये सिर्फ पेन ही, पेन तो है ही है, लेकिन साथ साथ और भी सेंसेशंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीजनर्स को, आई मीन ये अभी हम नॉन एंड, यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर नॉन इनकैप्सुलेटेड। दिस वन इज मर्कल्स डिस्क, याद रखना दिस आल्सो इज नॉट इनकैप्सुलेटेड। मर्कल डिस्क में क्या होता है, जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं ये डिस्क शेपेड होती हैं, ऊपर की तरफ दे बिकम डिस्क शेपेड, ठीक है। एंड दे रीच एंड इनर्वेट द सेल्स ऑफ द बेसल एपिथेलियम, व्हिच these cells are actually non-nervous cells, यानी ये nervous tissue के cells नहीं है, these are non-nervous cells जिनको Merkel cells कहते हैं। तो free nerve endings, when they become disc shaped and they innervate the cells of the basal epithelium called the Merkel cells, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने दिखाया है nerve fiber जा रहा है and innervates the Merkel cells, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड मर्कल्स डिस्क। याद रखना, क्योंकि डिस्क वर्ड याद रखोगे तो तुम्हें इसका शेप पता रहेगा। सो इट इज डिस्क शेपेड। पाया कहां जाता है डायग्राम में? यू कैन सी दैट दीज आर फाउंड इन द पैपिलरी डर्मिस। ठीक है, पैपिलरी डर्मिस में आएगा। साथ साथ एपाइकल एंड ऑफ हेयर फॉलिकल्स में। पर्पस क्या था इसका? बताया था प्रेशर। ठीक है, प्रेशर रेगुलेटरी होता है ये मर्कल्स डिस्क। ठीक है, नॉन इनकैप्सुलेटेड है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखना। नॉट इनकैप्सुलेटेड की बात करते हैं तो मीजनस कॉर्पसल्स ये दिख रहा है। मीजनस कॉर्पस में क्या है कि जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं ये कॉइल्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, कॉइल्ड होने के बाद जो इसमें कैप्सूल है, याद रखना, उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं एंड देयर आर वर्टिकली अरेंज्ड इलास्टिक फाइबर्स इन द कैप्सूल ऑफ द मीजनस कॉर्पसल। एंड लोकेशन वाइज यू कैन सी ये कहां पर है? इन द पैपिलरी डर्मिस। और ये क्वेश्चन नीट पीजी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये पैपिलरी डर्मिस में पाए जाते हैं। अच्छा, इनका एक्शन क्या है? आई मीन यू नो सेंसेशन क्या लेते हैं? दे लीज द टच। टच याद रखना, टच जो होता है, फाइन टच जो है वो मीजनस कॉर्पसल से रिलेटेड है, टच। ठीक है, और अब क्या है इसके बारे में? इनकैप्सुलेटेड होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं ये, दे आर इनकैप्सुलेटेड। पाए कहा जाएंगे? डर्मिस, मसल, जॉइंट्स, टेंडन। ये टच वाली जो फीलिंग है ये डर्मिस यानी कि मसल से भी आएगी, जॉइंट से भी, टेंडन से भी आएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दिस इज अ रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर। यानी टच हुआ, पता चला, लेकिन इट गेट्स अडेप्टेड वेरी सून। ठीक है, उसके थोड़ी देर के बाद लाइक यू नो हमने किसी जगह पे हाथ रखा हुआ है टेबल पे, तो इनिशियली व्हेन आई पुट माय हैंड ऑन द टेबल तो हमें पता चला कि मैंने टेबल पे हाथ रखा है, लेकिन थोड़े ही देर में यू नो हमें ये सेंसेशंस हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे आ जाएगा। व्हेन विल फिर ये बॉदर नहीं करेगा कि हमने हाथ वहीं पे रखा है कि नहीं। तो कहने कहीं इट गेट्स अडेप्टेड वेरी इजीली। ठीक है, तो मीज क्योंकि इसलिए बता रहे हैं ये रैपिडली है, देयर आर सम व्हिच आर स्लो अडेप्टिंग। Now this one is Ruffini's endings. Ruffini's endings में भी दिख रहा है, ये deeper dermis में दिख रहा है. So this is not in the papillary, rather this is in a reticular or deep dermis. One thing, reticular dermis में encapsulated है और इसमें जो कोलेजन फाइबर की शीट होती है. ठीक है, और एक बात और बताएं कि जो Ruffini's हैं ये रेटिकुलर डर्मिस एंड दे स्लो अडेप्टिंग, सस्टेन्ड प्रेशर पे ये जाके होते हैं, यानी कि सस्टेन्ड प्रेशर का सेंसेशन इसमें आएगा. इसमें जैसे मैंने कहा जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, और जो चीज जल्दी अडेप्ट नहीं होगी उसमें देर तक सेंसेशन आएगा, यानी स्लो अडेप्टिंग है. अब जैसे बहुत से लोग साइकिल पे बैठते हैं तो आगे एक रॉड लगा होता है उस पे बैठ जाते हैं, तो उस पे बैठ के चलते हैं तो बहुत देर तक आपको पता चलता रहता है कि हम इस पे यू नो बैठे. दैट इज स्लोली अडेप्टिंग. वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा. जल्दी अडेप्ट हो जाती है चीज तो फिर यू नो उस सेंसेशन से इंसान हट के दूसरी चीज पे ध्यान देता है. तो जो स्लो अडेप्टिंग होते हैं उसको सस्टेन्ड प्रेशर के लिए याद रखना है. इट इज सेंस रूफनीज एंड एंडिंग्स जो होती हैं, कॉर्पसेस भी कह सकते हो, दे आर स्लोली अडेप्टिंग एंड दे सस्टेन्ड प्रेशर के लिए होते हैं. और तीसरा पॉइंट कि ये डीप डर्मिस में पाए जाते हैं. देन यू कैन सी द पेसिनियन कॉर्पसेस. ठीक है, पेसिनियन कॉर्पसेस जो होते हैं ये लैमिलेटेड ऑर्गन्स हैं, क्योंकि इसमें जो शीथ है, कैन यू सी, पहली चीज इसमें पॉइंट नंबर 1 दैट दे आर बिलो द डर्मिस, यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू में पाए जाएंगे. देन दूसरी पॉइंट क्या है, दैट लैमिलेटेड ऑर्गन्स है, कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ शीट्स ज्यादा होती हैं सराउंडिंग, तो ये कोलेजन कवरिंग्स होती हैं इसके ऊपर. ठीक है, और इतनी होती हैं कि इनकी लेंथ 2 मिलीमीटर है. ये मैन रिमेंबर, ये माइक्रोन की बात नहीं हो रही है, ये मिलीमीटर्स की बात हो रही है. पाया जाएगा, ये भी प्रेशर लेगा सेंसेशन. ठीक है, ये कहां से लेगा? पाम्स एंड सोल, जो थिक स्किन थी. ठीक है, पाम एंड सोल्स में, और जेनाइटिलिया, आर्म्स, निपल्स, नेक एंड मीजेंट्री, और रैपिडली अडेप्टिंग भी है. ठीक है, तो जो बॉडी के पार्ट्स याद रखना है कि हैंड्स यानी कि टोज यानी कि सोल एंड पाम, जेनाइटिलिया, निपल्स, नेक
और अंदर विसरा में मीजेंट्री में भी होते हैं पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो ये खाली एक्सटेरोसेप्टर नहीं है, ये इंटेरोसेप्टर भी है पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, ठीक। और काफी बड़ा है, 2 मिलीमीटर साइज का है, प्रेशर से ले जाता है एंड रैपिडली अडेप्टिंग है, और ये सबक्यूटेनियस है। अब हमें ये बताओ, ये जो प्रेशर वाले काफी सारे हो गए रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे ख्याल से सिर्फ मीजनस कॉर्पस्कल जो टच रिलेटेड है, बाकी सारे रिसेप्टर्स प्रेशर सेंसेशन फील करते हैं, ठीक है। तो कल को रूल आउट करने को आए तो फ्री नर्व एंडिंग्स भी प्रेशर सेंसेशन फील करते हैं, लेकिन मीजनर स्पेशली टच के लिए, ठीक है। ओके, तो दिस इज प्रोप्रियोसेप्टिव। देखो जल्दी से, ये कहां पर है, ये मसल है, ये टेंडन है, राइट। तो मसल और टेंडन के बीच में, या यू कैन से कि मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन पे, या इवन इन द टेंडन, ठीक है। तो चूंकि ये भी, लेट मी टेल यू, ये सारे ऑर्गन्स हम जो पढ़ा रहे हैं, रिसेप्टर्स पढ़ा रहे हैं, दे आर इनकैप्सुलेटेड, राइट। तो ये हम बढ़ा रहे हैं, ये है ऑर्गन ऑफ गोल्जी, ठीक है। गोल्जी ऑर्गन जिसे कहते हैं, दिस इज गोल्जी ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स आते हैं मसल्स के लिए, नाउ दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट। ये 1B कैटेगराइजेशन तुम्हें फिजियोलॉजी में पढ़ाई होगी, अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ द न्यूरॉन्स, दिस इज कैटेगराइज्ड एज 1B कैटेगरी में आते हैं। हेविली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, और इनकी थिकनेस है अराउंड 5 to 12 माइक्रॉन्स, ठीक है, 5 to 12 माइक्रॉन्स। So these nerve fibers, they reach the tendon and then they spray there, spray like branching होती है इसके अंदर, and don't forget ये capsulated होता है। तो ये sensations कौन से ले जाएगा, stretch sensation ले जाएगा, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन जो है वो स्ट्रेच के थ्रू आता है। अब ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये दूसरा है प्रोप्रियोसेप्टिव, ये मसल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। इसको न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल कहते हैं। तो स्पिंडल याद रखना मसल में होती है, और गोल्जी ऑर्गन टेंडन में होता है, ठीक है। अब मसल के अंदर क्या होंगे, ये भी देखो क्या होते हैं, दो तरह के इसमें फाइबर्स होते हैं। मसल स्पिंडल, ये देखो एक्चुअली ये skeletal muscle fibers get embedded within this muscle spindle जो स्पेशलाइज्ड हैं। तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, कुछ सिलिंड्रिकल फाइबर्स, यू कैन सी देयर सिलिंड्रिकल फाइबर्स, एंड सम आर फ्यूसीफॉर्म, यानी ये स्पिंडल शेपेड हो जाते हैं। तो है एक पूरा ऑर्गन, ये जो ऑर्गन कवर्ड है ना लैमिनेटेड, दिस इज कॉल्ड अ मसल स्पिंडल व्हिच इंक्लूड्स सम मॉडिफाइड स्केलेटल फाइबर्स, सम आर सिलिंड्रिकल, सम आर फ्यूसीफॉर्म, वन थिंग, ठीक। अब देखते हैं जो इसमें नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, देखो इसको कहते हैं इंट्राफ्यूसल फाइबर्स। जो मसल स्पिंडल के अंदर आ रहे हैं, दे आर इंट्राफ्यूसल फाइबर्स। ये चाहे इसको कहते हैं न्यूक्लियर बैग मसल फाइबर, ये वाले हैं न्यूक्लियर चेन यानी कि लंबे वाले हैं। बट ये जो मसल फाइबर्स हैं, दिस यू आर सीइंग ऑन आउटसाइड द स्पिंडल, ये कहला जाते हैं एक्स्ट्राफ्यूसल फाइबर्स, ठीक है। लो, हाँ मैं ऊपर हूँ, क्लास ले रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो ये एक्स्ट्राफ्यूसल मसल फाइबर्स हैं, ठीक। अब इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, ये तुमने देख लिया न्यूक्लियर बैग। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मसल फाइबर्स हैं, लेट्स सी कि इसमें जो नर्व्स आ रही हैं, बिकॉज नर्व्स आ नहीं रही, बल्कि सही लफ्जों में कहें तो ये नर्व्स जा रही हैं, बिकॉज दे आर एफरेंट फाइबर्स, ये सेंसरी फाइबर्स। सो वन ऑफ देम, लेट्स सी, ये जो ग्रीन कलर से बनाया है, ग्रीन कलर के फाइबर्स, कैन यू सी द कलर्स, अप्रिशिएट द कलर्स। The green color fibers, they are actually spirally winding around this nuclear bag muscle fiber. तो जो स्पायरली वाइंड करेंगे, these are annulospiral primary cervical endings, ये एनुलोस्पायरल एंडिंग्स होती हैं। और ये जो फाइबर्स होते हैं जो स्पायरली वाइंड कर रहे हैं, दे आर गामा, देयर आर ग्रुप 2 एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। सॉरी, ये वाले जो होते हैं, ये वाले जो स्पायरली होते हैं, दैट इज ग्रुप 1, यानी ये थिकेस्ट होते हैं, दैट इज ग्रुप इनटू 1A। इनके डायमीटर होते हैं अराउंड 12 to 20 माइक्रोन्स,
और वो जो गोल्जी ऑर्गन में थे वो 5 to 12 थे, वो 1B कैटेगरी में थे, ये 1A कैटेगरी में आते हैं। ये थिकेस्ट एफरेंट्स में जो थिकेस्ट है वो ये है एनुलोस्पाइरल वाले 12 to 20 माइक्रोन्स में। फिर क्या है, दूसरे जो टाइप 2 फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये अंदर आके स्पाइरली नहीं वाइंड करते हैं, रादर दे स्प्रे आउट बोथ द एंड्स, यानी ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं, एंड दे स्प्रे आउट एंड लाइक अ फ्लावर स्प्रे कहते हैं। फ्लावर स्प्रे सेकेंडरी नर्व एंडिंग्स जो होती हैं इसकी फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स होती हैं, यानी कि जो इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 वाले याद रखना एनलोस्पायरल होते हैं, ये ज्यादा थिक होते हैं, इनकी अराउंड 12 to 20 माइक्रोन्स। अदर फाइबर्स जो होते हैं वो फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स होती हैं एंड दे आर टाइप 2 फाइबर्स। ठीक है, अब ये तो हो गए एफरेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट द इफरेंट्स। अब इफरेंट्स में जो होते हैं यानी कि ये जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं जो एंटीरोन सेल से आ रहे हैं, दे गामा न्यूरॉन्स, और गामा न्यूरॉन्स वैसे भी थिक होते हैं, तो दे डिसेंड डाउन, और ये जाके देख रो ये दोनों एंड पे, यानी कि चाहे तो वो न्यूक्लियर बैक फाइबर हो या न्यूक्लियर चेन मसल फाइबर हो, सब में मसल्स के एंड तक पहुंचेंगे और वहां पे जाके क्या बनाएंगे, मोटर एंड प्लेट्स। दे विल फॉर्म एन इफेक्टर ऑर्गन, मोटर एंड प्लेट्स। ठीक है, ये देखते हैं इफेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, गामा मोटर न्यूरॉन्स, ये डिसेंडिंग न्यूरॉन्स हैं। ये नीचे आएंगे और मसल में जब ये पहुंचेंगे, सार्को मेम्ब्रेन, सार्कोलेम्मा कहते हैं ना, सार्कोलेम्मा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर्स, सार्कोलेमा के पास जब ये पहुंचेंगे, टर्मिनल बटन्स इनके, तो वहां पे एक वेवी पैटर्न में सार्कोलेमा फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द जंक्शनल फोल्ड्स ऑफ सार्कोप्लाज्म। ठीक है, इस तरह से देन द सार्कोलेमा जस्ट बिलो टू द टर्मिनल बटन विल बी मॉडिफाइड and will be carrying the nicotinic receptors, and this is called the synaptic gutter. And there you'll find nicotinic receptors because in skeletal muscles it is mainly acetylcholine that is secreted. ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं, तो इस तरह से ये यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ से इसमें एसिटाइलकोलिन आता है, लिबरेट होता है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट की मैंने थिकनेस बताई थी, अराउंड 20 to 50 माइक्रोन्स होती है, और एंजाइम इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक एंजाइम होता है कोलिनिस्टेरेज, वो भी यहाँ पाया जाता है। टर्मिनल बटन के बारे में देखो, हम तुमको साइनेप्स दिखा चुके हैं, दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेसिकल्स, एंड एक्सोप्लाज्म कंटेन एसिटाइल कोलिन होता है। अच्छा, अब ये सार्कोप्लेमा के नीचे देखते हैं, जहां पे ये टर्मिनल बटन्स होते हैं या यू कैन से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, मोटर और ऑर्गन होता है, वहां पे नीचे जो सोल प्लेट कहलाती है उसमें सार्कोप्लाज्म में you'll find a lot of mitochondria and the cytoplasm is granular। ठीक, उसके नीचे जो मसल फाइबर्स हैं, देखो मसल फाइबर जो मोटर यूनिट मैंने बताया, मेनी फाइबर्स होंगे तो कोर्स मूवमेंट होगा, less fibers if are attached with one terminal, it is if terminal muscle nerve terminal is ending on less fibers, then there will be fine movements. If it terminates on large number of muscle fibers, there will be a coarse movement। ठीक है, lastly अब ये देखते हैं कि साइनेप्ट, हाँ, इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल पॉइंट है, वो जरूरी है, देख लेते हैं, ये पूछा जाता है। यस, माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ कंडीशन विच इज एन ऑटोनॉमिक कंडीशन। उसमें क्या होता है, जो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्ट करते हैं, तो स्क्रीन गॉन, अब आ गई, अब आ गई स्क्रीन, अभी दिख रही है स्क्रीन? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द रिसेप्टर एंड, या यू कैन से पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। तो अब धीरे धीरे ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं स्केलेटल मसल्स पे। अब स्केलेटल मसल्स के अगर निकोटिनिक रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होंगे तो एसिटाइलकोलिन इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा, तो यानी कि योर इंपल्स कंडक्शन विल बी हार्म्ड, यानी इंपल्स तो सीएनएस से चल के आ रही है बट मसल तक नहीं पहुंच रही।
तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मायस्थीनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून कंडीशन है। एंड इसमें 80% केसेस में थाइमस की वजह से, द मेन कॉज इज थाइमस, थाइमस में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता रहता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ऑटोइम्यून कंडीशन है। एंड अब जब मसल जो हो जाती है ना, वीक हो जाती है मसल, क्योंकि मसल का एक्शन नहीं आ पा रहा है प्रॉपरली, जिसे कहते हैं बैटरी अगर फिटेड ना हो तो टॉर्च ब्लिंक करती, कभी कभार लग गई तो कभी नहीं लगी, तो उस तरह का हो जाएगा कि इम्पल्स आ रही है लेकिन ये कभी एक्ट करा कभी नहीं एक्ट करा, प्रॉपरली मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही उसकी वजह से। तो इसमें क्या होगा, नेक एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल, याद रखना, प्रॉक्सिमल यानी शोल्डर एंड हिप जॉइंट, आर्म एंड थाई, ये प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स होती हैं, और नेक, इन सब की मसल्स ज्यादा इफेक्ट करेंगी। और फिर उसमें इंसान का जो है ना गर्दन जो है ना, हेड, वो स्टैंड इरेक्ट नहीं रख पाएगा गर्दन, वो गर्दन लेफ्ट राइट आगे पीछे है ना बेंड करेगी, दैट्स कॉल्ड लोलिंग ऑफ हेड, यानी हेड गिरता रहेगा हर तरफ, ठीक है, स्पेशली द एक्सियल एंड द प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स, ठीक है। और लिम्ब रिफ्लेक्सेस इसमें जो होते हैं हालांकि वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, एंड मसल वेस्टिंग भी 15% पेशेंट्स में मसल वेस्टिंग हाइपोटोनिया भी दिखेगा, ठीक है। और डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ब्लड सैंपल ले लो और ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हमें मिलेंगे, एंटीबॉडीज, ठीक है। दैट इज द डायग्नोस्टिक्स वे ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। एंड ये तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सब पता ही है तुम्हें कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इट रीचेस एट द टिप ऑफ द कॉसिक्स एट द टाइम ऑफ 3 months ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ ये कॉसिक्स तक होता है, ठीक। अब जब बर्थ होगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ तब तक की वर्टिब्रल कैनाल काफी लॉन्ग हो चुका होता है, एंड दिस ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, they also grow according to the length of the spine, but spinal cord doesn't grows in proportion to the length of the spine. So what happens is at the time of birth you will find that the spinal cord reaches to the lower border of L3, L3 L4 याद रखना, जहां पे लंबर पंक्चर करते हैं उस लेवल पे न्यू बॉर्न बेबी में स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है, बट इन एडल्ट्स इट टर्मिनेट्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन तो मैं बता चुके हैं, नीचे से चल रहे हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड bulges to form medulla, then it bulges to form pons, then continues as midbrain, this is the brainstem again, cranially forms the diencephalon is attached to the diencephalon, and diencephalon on the two sides is attached to the two cerebral hemispheres, and pons I told you is attached with the help of cerebellar peduncles to the midbrain, pons and medulla, तीनों से, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर कैविटी ये तो पता ही है, वेंट्रिकुलर कैविटी ऑफ द टीलेंसेफ्लॉन इज the lateral ventricle, ventricular cavity of the third of the diencephalon is called third ventricle, ventricular cavity of the midbrain is called cerebral aqueduct, ventricular cavity of the pons hindbrain कहते हैं इसको, pons cerebellum and medulla, and pons cerebellum, pons and medulla की जो cavity है that is called the fourth ventricle, and cavity of the spinal cord is central canal, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अच्छा, नाम थोड़े से पूछ लेते हैं कि क्या होता है। तो डिविजन्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ब्रेन को, याद रखो। फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफ्लॉन कहते हैं, मिड ब्रेन इज मीजेंसेफ्लॉन एंड हाइंड ब्रेन इज रोम्बेंसेफ्लॉन, ठीक है। अब फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, टीलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन, ठीक है। फोर ब्रेन हैज 2 पार्ट, टीलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन। टीलेंसेफ्लॉन इज सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन इज कॉल्ड थैलेमेंसेफ्लॉन, उसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सब पार्ट्स आते हैं। मिड ब्रेन जो होता है इसमें हम नीचे से अगर वेंट्रल टू कॉर्डल जाएंगे, वेंट्रल टू डॉर्सल जाएंगे तो you'll find crus cerebri, substantia nigra, tegmentum, tectum, ये सब चीजें होती हैं बिफोर बैकवर्ड्स, दैट्स मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, metencephalon and myelencephalon। now metencephalon is pons and cerebellum, and myelin, myelo, myelin से याद रखना, it is
मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, कैविटीज तुमको सारी बता दी हैं, यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं। ये है स्पाइनल कॉर्ड, नाउ यू सीइंग इज मेडुला, दिस इज वन इज पॉन्स, दिस इज मिड ब्रेन, ये हो गया ब्रेन स्टेम, ये हो गया देखो डायंसेफ्लॉन है, ये थैलेमस है। देन दिस इज द कॉर्पस कैलोसम, जिससे कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जुड़े होते हैं, इसको हम टीलेंसेफ्लॉन कहते हैं। और ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम एंड पॉन्स टुगेदर फॉर्म द मीटेंसेफ्लॉन एंड मेडुला इज द माइलिनसेफ्लॉन। मीटेंसेफ्लॉन माइलिनसेफ्लॉन दोनों मिला के क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन, जिसको हम रोमेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना कि सीएनएस जो है वो तो न्यूरल ट्यूब से बनता है, लेकिन कुछ सेल्स जैसे मैंने बताया ये बहुत पूछे जाते हैं न्यूरल क्रेस्ट से बनते हैं। तो ये ऐसे याद रखो कि जो सीएनएस के आउटसाइड द सीएनएस जो नर्वस टिश्यू एसोसिएटेड सेल्स हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। दैट इंक्लूड्स, याद रखना, डॉर्सल रूट गैंग्लियन के यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए डीआरजी वाले, सिंपैथेटिक गैंग्लियन के जो सेल्स हैं पोस्ट गैंग्लियनिक वाले सेल्स हो गए, क्रोमाफिन सेल्स हो गए, न्यूरिल लेमा वाले यानी श्वान सेल्स हो गए, न्यूरिल लेमा को ही कहते हैं ना श्वान सेल्स, वो हो गए। एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर जो बन रही है वो भी सीएनएस के बाहर है, इनके सेल्स हो गए। ब्रेंकियल कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो भी, और मीजनकाइमल सेल्स के जो होते हैं हेड हेड रीजन में जो मीजनकाइमल सेल्स हैं वो भी, और मिलानोफोर यानी मिलानोसाइट्स जो होते हैं, ये सारे जो हैं पिगमेंट सेल्स जो होते हैं मिलानोसाइट, सब जो है न्यूरल क्रेस्ट के डेरिवेटिव है। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए तुम्हें पता है, हम अगर ब्रेन को ऊपर से देखेंगे ये तो मीडियन लॉन्गिल फिशर है, दिस व्यू इज द सुपीरियर व्यू, ये नीचे से देख रहे हैं तो इंफीरियर व्यू है, ये लेटरल, ये सजाइटल सेक्शन, नाउ दिस यू आर सीइंग इज द लेटरल व्यू, और ये मीडियल व्यू है, ये लेटरल व्यू है, एंड दिस इज द इंफीरियर ऑब्लिक व्यू, दिस इज द इंफीरियर पोस्ट ऑक्सीपिटल व्यू, यानी कि सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स दिख रहे हैं कोरुगेटेड से, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। इसके अलावा सेक्शनिंग में देखा जाता है तो दीज आर द कोरोनल सेक्शंस, ये देखो ब्रेन वाइवा में पूछ लेते हैं तो कोरोनल सेक्शंस हैं, ये हैं ट्रांसवर्स सेक्शंस हैं, और ये सजाइटल सेक्शंस हैं, दे ऑब्लिक सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस देख लेना एक बार, एंड इट इज ऑल डन। मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हो गया है, अब हम एमसीक्यू नहीं कराते हैं, ठीक है, बेकार में टाइम ज्यादा हो गया तो फिर तुम लोग का वेस्ट होगा, नेक्स्ट टाइम फिर